this is what tabular method. Here our main purpose is what? Tabular method. Table wise means we have to solve, we have to find out EOQ on the basis of what? Tabular method. So it's vividly explained. Tabular method means you have to make a table, that's it, and nothing is there. So from the following information, calculate EOQ. What we have to calculate? We have to calculate economic order quantity by using formula. So here we have to use what beta? Formula also, as well as what beta? Formula as well as tabulation. Means we have to use formula method also as well as tabulation method also. We have to use what beta? Formula as well as what beta? Tabulation method. Remember it. What we have to use here? Formula as well as tabulation method. ये चीज याद रखना. अब देखो एक एक करके इंफॉर्मेशन देखना. तो फॉर्मूला मतलब वही EOQ का फॉर्मूला जो आप यूज करते हो, बराबर, √2AO upon C, same. Now what is given here? See, the annual requirement in units is given, that is 6,400. Annual requirement in units is given 6,400. Okay, ये आपका 6,400 annual requirement. Ordering cost per order is given, that is 100 rupees, that is ordering cost beta. Carrying cost per unit is also given, that is rupees 10. Carrying cost per unit is given what beta? 10 rupees. After that per unit price. Sir, 8 rupees दिया है. Oh sorry, 8 rupees, sorry, not 10, 8 rupees. Good. Okay. So ordering cost is 100 and carrying cost per unit is what? 8 rupees. Per unit price is what beta? 80. Per unit price is kitna beta? 80. Okay. So cost per unit, that is per unit price, that is 80. Okay. देखो सब अपने को डेटा पता है. This is what annual requirement, जिसको आप annual usage बोलते हो, that is 6,400 units. Ordering cost आपका O हो गया 100. Carrying cost आपका 8 हो गया, बराबर है. तो ये हो गया C. सब दिया देख रहे हो. A 6,400, ordering 100, carrying cost कितना है? 10, सॉरी 10 क्या, आज का 10 ही याद आ रहा है, 8. ठीक है. और पर यूनिट प्राइस क्या हो गया? 80. ओके, चलो. नाउ the firm can procure inventories in various lots. अब क्या बोल रहा है? firm can procure inventory in various lots. और वो जो lots है, जो order size है आपका, तो क्या lots है? देखो बेटा, in various lots like such as what? Such as 6,400 units first lot, second lot 3,200 units, third lot 1,600 units, fourth one is what? 800 units, fifth one 400, sixth one 200, and final one 100 units. So these all are the lots, various lots. Okay, all information is given. So these various lots is what? Order size, right? So these all are the various lots. All the information is given here. Now on the basis of this information, first we have to use formula method, which is very simple. Everything is given. AOC. AOC is given. So formula method ke hisab se you can calculate, or what? You can calculate your EOQ very easily. So EOQ, yes, well done Payal. Yes Swarali, very good. Okay, yes Akhil, very nice. So your EOQ will directly come 400 units as per the answer given by the students. तो देखते हैं, चलो सॉल्व करेंगे हम लोग. डोंट वरी, अदर्स सॉल्व करोगे मेरे साथ, टेंशन मत लो. चलो, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द सम. सो फॉर दिस आई शेयर द स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड. सो बेटा, A is what? Annual demand or annual usage or annual requirement, which is given 6,400 units. O is ordering cost per order is given, that is 100. C is also given directly. So we don't need to use the formula to calculate C. Carrying cost के लिए आपको cost of 1 unit into carrying cost percentage per annum, ये formula use करने की जरूरत ही नहीं है ना, because carrying cost is given directly in the question. कितना दिया carrying cost? 8 rupees ना, 8.
So all the datas are given beta. Now calculate our EOQ formula method. क्या बोल रहा है अपना? फर्स्ट अपने को फॉर्मूले मेथड के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो आ जाओ. EOQ is equal to under root 2AO upon C. So चलो कैलकुलेट कर लो. Under root 2 into A is what? 6400 into O is what? 100 divided by C is what? 8. चलो निकाल लो सब लोग. तो 400 यूनिट्स आ गया. यस, करेक्ट. तो 400, राइट. सो देख लो, चेक कर लो, सबका आ रहा है क्या 400? एवरीवन करेक्ट. सो दिस इज व्हाट EOQ. सो EOQ इज व्हाट 400. ओके बच्चा. So our EOQ is what bacha? 400 units. Simple. Okay. Right? Clear? Yes. Very good, Santosh. Correct. So EOQ is what? 400. ठीक है. चलो अब ये EOQ भी आ गया आपका. Done. Now this is the formula method. अब अपने को यूज क्या करना है बेटा? फॉर्मूला मेथड तो हो गया ना. Now we have to use tabular method. तो चलो. So tabular method. It's normal. It's simple. Yes बेटा पायल करेक्ट है. तो टेबुलर मेथड में पूरा टेबल बनाना पड़ेगा आपको. यू हैव टू मेक अ टेबल. चलो देख टेबल बनाते हैं. सो नाउ टेबुलर मेथड. टेबुलर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग व्हाट? EOQ. तो टेबुलर मेथड के लिए वही सेम कैलकुलेशन ऑफ EOQ अंडर टेबुलर मेथड. सो टेबल बना लो, आ जाओ. मेक अ टेबल. ओके. सो टेबल के लिए सबसे फर्स्ट कॉलम आपका आ जाएगा क्या? नंबर. नंबर दिखा दो. नंबर के बाद आपका पर्टिकुलर्स. ओके. नंबर पर्टिकुलर्स क्लियर बेटा. उसके बाद आपका नॉर्मल फॉर्मूले का कॉलम बनाना तो फॉर्मूला बना सकते हो, या नहीं भी बनाना है तो मत बनाओ चलेगा. ये एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं मैं. एग्जाम में आपको भी बनाना तो बना सकते हो, मतलब किसका क्या फॉर्मूला है बस वो यूज करने का. ठीक है. फिर उसके बाद अपना देखो ऑर्डर साइज कितना है अपने पास. ऑर्डर साइज क्वेश्चन में दिया ना बेटा, कितना दिख रहा है? ये देखो दिखा रहा हूं मैं. सी हियर. देखो बच्चा कैसे मालूम पड़ेगा कितना कॉलम्स बनाना है. सी 1 2 3 4 5 6 7. तो ऑर्डर साइज अपने पास ऑर्डर लॉट्स है 7, तो 7 कॉलम्स अपने फिक्स हो जाएंगे. वी हैव टू मेक अ 7 कॉलम्स. सो लेट्स मेक इट 7 कॉलम्स. तो 1 2 3 4 5 6 7. इधर 1 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7. ओके. चलो. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 5 6 7.
6 and 7, ठीक है। चलो ये हो गया अपना, कॉलम आ गया, कॉलम एंड रोज। चलो तो टेबुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ईओक्यू, जैसा ब्लैक बोर्ड में बनाते हैं वैसा आ गया सब, ठीक है। चलो तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, द वेरी फर्स्ट स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप बताया मैंने, राइट है, इन लास्ट लेक्चर, फॉलो ऑल द स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट बेटा, योर ए, एनुअल यूसेज, राइट, दैट इज ए। फॉर्मूले में मैं शॉर्टकट लिख देता हूं इसका, जिधर फॉर्मूला नहीं यूज होगा उधर शॉर्टकट लिखता हूं। ए सबको पता है कितना है, 6400, 6400 कॉमन है ये, ठीक है। दिस इज व्हाट ए, ठीक है। इसको मैं चाहिए तो दूसरा कलर मारता हूं। दिस इज व्हाट ए। चलो नेक्स्ट सेकेंड वन, चले सेकेंड वन। अब सेकेंड वन विल बी व्हाट, सेकेंड स्टेप यू ऑल नो। सेकेंड स्टेप है क्या बेटा, पता है सबको? यस, ऑर्डर साइज। हाँ, ऑर्डर साइज। ऑर्डर साइज बराबर है, तो ऑर्डर साइज हम लोग दिखाते हैं बेटा क्यू से, जिसको क्वांटिटी बोलते हैं, बट इधर फिलहाल वो ऑर्डर साइज हो गया आपका। अब ऑर्डर साइज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, वेरियस लॉट्स आर गिवन। सो फर्स्ट लॉट दैट इज 6400 का लॉट है, सेकेंड लॉट में 3200 है, थर्ड लॉट में 1600 ऑर्डर करोगे, नेक्स्ट लॉट में 800, फिर 400 के हिसाब से ऑर्डर करोगे, देन 200 एंड फाइनली 100। So this is what order size second one. Okay, second one. Clear बच्चा? Yes बेटा, very good. Correct. चलो बेटा, now the third one, third step is what? Now the third step. ऑर्डरिंग कॉस्ट। Yes. Step by step we have to follow it. Now the third step is what? Ordering cost per order. Ordering cost per order. Ordering cost per order. So ordering cost per order, that is O. That is what? O. Now ordering cost per order, everyone knows it is given in the question, that is 100. What is given? 100. It is what? 100 it is given. ठीक है, वो आपको डायरेक्टली दिया है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट इज गिवन 100, सब दिया है, 100 100 100, राइट। सो दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का भी स्टेप हो गया, पूरा स्टेप फॉलो करो बस। चलो अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर भी हो गया अपना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? कैरिंग कॉस्ट। यस करेक्ट, शाबाश संतोष, कैरिंग कॉस्ट। वेल डन आशीष। कैरिंग कॉस्ट, अब कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या रहता है अपना? पर यूनिट पर एनम, C. पर यूनिट पर एनम। पीयूपीए मतलब पीयूपीए पर यूनिट पर एनम, पीयूपीए इज व्हाट? पर यूनिट पर एनम। अरे नॉर्मल सी बात है, कैरिंग कॉस्ट रहेगा तो पर यूनिट का पर एनम के बेसिस पे रहता है। तो फिलहाल तो इधर डायरेक्टली दिया है 8 रुपीज, राइट है, तो 8 रुपीज वो पर यूनिट का ही है और नॉर्मल है। जो पर एनम मतलब क्या? परसेंटेज पर एनम की बेसिस पे, तो इधर परसेंटेज दिया नहीं तो साइल देखो साइमल्टेनियसली फाइनली आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट आ गया अपना, कैरिंग कॉस्ट अपने को कितना है? 8, दैट इज सी। कैरिंग कॉस्ट कभी भी देखो आप स्टार्टिंग से कैलकुलेट करते हो, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया रहता है पर एनम, है कि नहीं? पर एनम दिया रहता है, उसको आप कैलकुलेट करते हो पर यूनिट के बेस पे। कॉस्ट ऑफ यूनिट कितना है? 1 यूनिट का कॉस्ट है 10 रुपीज,
तो परसेंटेज जो दिया रहता है पर एनम का, जैसे 10% है तो 10 का 10% लेते हो ना, बस वही है पर यूनिट पर एनम। तो इधर तो ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट दिया तो कोई इशू ही नहीं है। 8 रुपीज है तो 8 दिखा दो आपका क्वेश्चन में जो दिया है, दिख रहा है क्वेश्चन में 8 है ना, यस 8 8 that's it. So this is carrying cost per unit per annum. Now ये भी हो गया अपना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम डन। चलो बेटा अब Number of order. वेरी गुड वेरी Number गुड, of orders upon Q. यस करेक्ट A करेक्ट upon Q. बराबर है। अभी कैरिंग कॉस्ट के बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ व्हाट ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर को हम लोग दिखाते किससे, एन से, इसको हम लोग शो किससे करते, एन, और फॉर्मूला इधर लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए अपॉन A upon Q. हाँ ए अपॉन क्यू। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन ईओ क्यू, POQ. ईओ क्यू तो फाइंड आउट ही करना है अपने को, ईओ क्यू तो मिला नहीं है ना, ईओ क्यू तो फाइंड आउट करना है, तो ईओ क्यू इन प्लेस ऑफ ईओ क्यू वी हैव टू पुट क्यू, क्यू नहीं क्यू, दैट इज दिस वन क्यू। वेरी गुड क्लियर। चलो तो फाइंड आउट करो, आ जाओ। तो नंबर ऑफ ऑर्डर ए आपका कितना है, ये दिख रहा है 1 आएगा फर्स्ट का, सेकंड का डिवाइड 2 2 आएगा, 1 2. यस पहले का 1 आ 1 गया, 2 4 1 2 2 4 4 आगे 8 बराबर है, 6400 डिवाइड बाय 8 8 फिर 16, फिर 16 आया, 16 के बाद क्या आया? 16. हाँ फिर 200 और 16 ये है तो 32 हो गया, 32 और फिर ये उसका 64। 64 sir. 64. हाँ सर, वेल डन संतोष, हितेश, आशीष, गुड करेक्ट है। कैलकुलेशन खाली चेक करना एक बार, तो कैलकुलेशन एरर हुआ तो पूरा जाएगा, ठीक है। चलो सो ये हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी अपना हो Total गया। ordering cost. Yes, now the next step is what, total ordering cost. So total ordering cost, ordering cost का टोटल लेना है अपने को, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब बेटा फॉर्मूला पता ही है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ये इधर क्या है, टीओ। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट को हम लोग क्या सिंबॉलिकली दे दे रहे, टीओ। तो टीओ TO. निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर जो आया एन N. Into ordering cost. इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है अपना ओ, ठीक है, एन इंटू ओ। तो चलो कर लो, एन अपना 100 है 1, 200 400 that is 800 1600 100 हो गया, दूसरा क्या हो गया 200 200 400 800 400, 1600 3200 6400 800 1600 3200 64. 64। 6400 यस वेरी गुड मितेश, संतोष, वेल डन। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हो गया अपना। Total carrying cost. हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद अभी नेक्स्ट अपना स्टेप आएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट का। 7th स्टेप इज व्हाट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। सो 7th वन, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, राइट है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं अपना टीसी, सिंबॉलिकली, राइट। टोटल कैरिंग कॉस्ट टीसी दे दिया, टोटल कैरिंग कॉस्ट। यस वेरी गुड काजल, वेरी गुड स्वराली, वेरी वेरी नाइस। सो टोटल कैरिंग कॉस्ट में 56,000 Yes. फर्स्ट का सर. अभी देखो फॉर्मूला अपना क्या बनता है पता है ना, टीसी टोटल कैरिंग कॉस्ट अगर निकालना है तो किसके बेसिस पे होता है, ये एवरेज क्वांटिटी के बेसिस पे, याद है ना फॉर्मूला। और एवरेज क्वांटिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, क्यू को डिवाइड बाय 2, एवरेज करना है Divide by 2.
Q डिवाइड बाय 2, यस। तो ये फॉर्मूला थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको। इसका फॉर्मूला है Q डिवाइड बाय 2 multiplied by what? C multiplied by carrying cost. Multiplied by C. Okay, so this is the formula, and by using this formula you can find out your answer. Okay, so chalo 2,56,000. yes, Q अपना 6400 डिवाइड बाय 2 किया, मल्टीप्लाइड बाय C कर देने का। सब कैलकुलेशन कैलसी रखो साइड में और करते जाओ। तो पहले का कितना आ रहा है? 2,56,000. 2,56,000। इतना ज्यादा कैसे आएगा भाई? फिर से देख एक बार। 25,600. 25,000, हाँ बराबर, 25,600 आएगा, राइट। चश्मा नहीं लगाया सर उसने। 25,600 होता है भाई, होता है, कभी कभी हो जाता है यार, मिस्टेक हो जाता है, सबसे होता है। सर 1 0 ज्यादा लग गया था. हाँ 1 0 ज्यादा बढ़ा लिया, चलेगा भाई। लाइक ज्यादा बढ़ा लिया। सेकंड वाले का 12,800 हाँ 12,800 सर सेकंड का। 1,200, 12,800 400, 3,200, 6,400. वेरी गुड। 6,400, 3,200, 3,000 200, 200, 1,600, 800, 400, 800 और 400। 400 800, 400. वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। सो दिस इज व्हाट टोटल कैरिंग कॉस्ट हो गया अपना। नाउ आफ्टर कैरिंग कॉस्ट अब आएगा फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा अपना? टोटल एनुअल कॉस्ट। फाइनल स्टेप विल बी व्हाट? आर टोटल एनुअल कॉस्ट। टोटल एनुअल कॉस्ट जिसको हम डिनोट करेंगे टीए से, और टोटल एनुअल कॉस्ट के लिए अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टीओ टोटल ऑर्डरिंग प्लस टोटल कैरिंग। तो टीओ प्लस टीसी, टोटल ऑर्डरिंग प्लस टोटल कैरिंग। करेक्ट, 25,700 वेरी गुड, यस करेक्ट, वेल डन काजल। चलो तो सबसे फर्स्ट आ गया अपना दिस 25,600 प्लस, हाँ सर बराबर है, प्लस कर 12,820। बस ये क्या करना है अपने को? ये दोनों को प्लस करते मारना, ये प्लस करते जाने हैं। ये दिख रहा है, हाँ, ये दिस ऐड अप करते जाओ तो आपको कॉस्ट मिल हाँ जाएगा। सर बोलते जाता हूँ। ठीक है, चलो बोलो पहला क्या हो गया? 25,700 एक मिनट, सेकंड 12,820। तो फर्स्ट आ गया अपना 25,700, 13,000 आएगा. सेकंड वाले का 13,000 13,000 आएगा। चश्मा लगा, चश्मा लगा, चश्मा. ठीक है 13,000। नेक्स्ट आ गया 6,800, 6,800 देन बाद में 4,000 4,000, 4,000, 3,200, 4,000, 3,200 राइट, 4,000 4,000, फिर बाद में 6,800 6,800। 6,800, करेक्ट। सो इधर जाके अपना पूरा स्टेप फिनिश होता है। दिस इज व्हाट आर स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो इन टेबुलेशन मेथड। देख रहा है टेबुलेशन मेथड में कितना टाइम जाता है, ये सब झंझट मारी करो, बराबर, इसीलिए तो फॉर्मूला बनाया ना। तो फॉर्मूले से क्या होगा, ये सब करने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला देखा ना आपने, फॉर्मूला मेथड, ये देखो कितना फटाफट 1 मिनट के अंदर आपका मालूम पड़ गया आपको ईओक्यू 400 यूनिट्स फॉर्मूले मेथड से, बराबर है। तो जब तक फॉर्मूला डिराइव नहीं हुआ था तब तक तो लोग यही फॉलो करते थे ना बच्चा, यही टेबल बना के फिर देखते थे क्या कॉस्ट, किधर कॉस्ट कम है। तो किधर कॉस्ट कम है जरा देखो, सबसे कम कॉस्ट देखो इधर, किधर दिख रहा है आपको? सबसे कम 25,700 है कि 13 है कि 6,800 है कि 4,000 है कि 3,200 है कि 4,000 है कि 6,800 है? कौन सा कम है सबसे कम? यस, 4,000 तो सबसे कम 3,200 चश्मा लगा, अरे हाँ हाँ चश्मा हाँ लगा. 3,200, बराबर है। सबसे कम कॉस्ट है 3,200 का। क्लियर? सबको चश्मा पहना रहा है। ओके, हाँ सर सबको चश्मा लगा. हाँ हाँ ठीक है। तो चल, अरे कोई बात नहीं, चश्मा मैं खरीद के दे दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है।
तो 3000 गॉस के सर के जरूरत से सबको बराबर फ्री है। में। तो 3200 सबसे कम कॉस्ट है, सबसे कम कॉस्ट है 3200 का। इट मींस इधर आपका जो Yes, sir. कॉस्ट 50 है यूनिट। एनुअल एंड कैरिंग कॉस्ट इज लेस, सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन सेंस, कि भाई अगर इधर कॉस्ट कम है तो इसमें जो भी ऑर्डर होगा, क्या ऑर्डर है, जरा ऊपर आ जाओ, देखो किधर है, ये रहा, दिख रहा है। ऑर्डर साइज क्या है इसका, लॉट क्या है 400। इसका मतलब हम 400 वाले लॉट्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मतलब अपना ईओक्यू कितना हो जाएगा 400। क्या हो जाएगा बेटा, आर ईओक्यू विल बी 400। समझा, किसी को डाउट है इसमें, जो मेरे साथ कर रहे हो, जो कर रहे हो उनमें से किसी को डाउट है? जिन्होंने कर लिया हो तो कर ही चुके, वेरी गुड, उन्होंने तो आंसर दे ही दिया। नो सर। बाकी किसी को है कोई इशू, क्लियर, ओके। तो सीधा सवाल है, जिधर कॉस्ट कम हुआ ऊपर आ जाओ, देखो उस कॉस्ट पे कौन सा ऑर्डर साइज अपने को ऑर्डर करना है, क्या लॉट है। ओके प्रतीक, वेरी गुड। सो द लॉट इज व्हाट 400, ये दिख रहा है 400। तो ये ऑर्डर साइज अपने को देना है, और यही ऑर्डर साइज अपना क्या हो जाएगा बेटा, दिस ऑर्डर साइज इज व्हाट आर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ। Is our what EOQ? Yes, संतोष, this is our what बच्चा EOQ। और ये ऑर्डर साइज, ये ऑर्डर लॉट आप 400 के हिसाब से 400 यूनिट्स का ऑर्डर दो, बराबर है कि नहीं, तो आपका ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट सबसे कम होगा। तो यही सबसे बड़ा इशू होता है ना बिजनेस के लिए, कि कितना ऑर्डर करे यार, कितना ऑर्डर करे, 400 करे, 800 करे, 1600 करे, कि पूरा एक साथ 6400 करे। यही सबसे बड़ा इशू होता है। इसके लिए वो पूरा कैलकुलेशन करते हैं कि कहाँ मेरा कॉस्ट कम होगा। तो मेरा कॉस्ट अगर मैं 400 ऑर्डर करूंगा 400 के हिसाब से, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी लेस, सो माय ईओक्यू विल बी 400। सो दिस इज द टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में ऐसे ही बनाते हैं बेटा। इसके पहले देखा ईओक्यू फॉर्मूला मेथड फटाक से हो जाता है, वेरी इजिली, वेरी फास्ट, ठीक है। तो उसमें कोई कोलैबोरेटिंग प्रिंसिपल नहीं है, सब नॉर्मल है बेटा। तो चलो अब इसके लिए आपको स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ये हो गया, तो स्टेटमेंट नीचे लिखने का, तो नीचे मतलब मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, जिसका नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज पे आओ, जिसका कंक्लूजन है। नीचे, हाँ कंक्लूजन टाइप, ठीक है, आ जा। सो दिखा दो इधर कंक्लूजन। कंक्लूजन दिखाने का बेटा, तो दिखाओ क्या हो जाएगा। ईओक्यू कितना हो गया 400, राइट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देयरफॉर कंक्लूजन में क्या हो गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना हो गया, देख रहे हो ना इधर 400 यूनिट्स, राइट है। एट 400 ऑर्डर साइज दिखा देने का, एट 400 ऑर्डर साइज, राइट, द टोटल ordering and carrying cost, that is, आप डायरेक्ट कॉस्ट लिख सकते हो, डायरेक्टली जो टोटल अवेलेबल कॉस्ट है ऑर्डरिंग और कैरिंग का, टोटल ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम, मिनिमम, राइट है। क्या हो गया मिनिमम, दैट इज कितना है ₹3200, that is 3200, right? Therefore economic order quantity is what 400 units, right? 400 units. Therefore economic order quantity is 400 units. बाद में अगर आपको और बढ़ाना है, टाइम रहेगा तो लिख देगा। So the company should opt for this order size, right? So at 400 order size, the total ordering and carrying cost are minimum, that is 3200 minimum, right? Therefore economic order quantity is what 400 units. Okay, so the firm have to follow, or the company have to follow this order size. अच्छा, अपना अटेंडेंस डाल देना बेटा सब लोग। एवरीवन पुट योर अटेंडेंस, अटेंडेंस मिस मत करो,
अटेंडेंस डाल दो सब लोग अपना, ठीक है. सो दिस इज द ऑर्डर साइज. सो द कंपनी हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर. 400 यूनिट्स का ऑर्डर फॉलो करना. Like that, the firm have to opt this order size, that is 400 units.